Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Night Thinkers. ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ପଢ଼ାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ BSc ବୋର୍ଡ଼ର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ନ ହେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତ ଆମେ ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ନିହାତି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଆମେ ପୋଷଣ କ'ଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ, ଏହା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାମ ହେଉଛି, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ବା ଆମ ଶରୀର କିଛି କାମ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତ ଏଇସବୁ ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଜମ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶୁଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନ ରହିବ ବା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କୋଷ, ଟିସ୍ୟୁ ତଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମଣିଷ ଶରୀର ସବୁଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୋଷ ବା କୋଷର ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଟିସ୍ୟୁ, ତାପରେ କୋଷମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ଟିସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମାହାରରେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଏଇ ସବୁ ଟିସ୍ୟୁ, କୋଷ ଆଉ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବା ମରାମତି ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ? ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟା ଏତେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ପୋଷଣ ବି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଓ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ବା ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଓ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଟା ଗଛ ବା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ତ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଜରିଆରେ ଗଛ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେଥିପୂର୍ବରୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆଗ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଟା ସରଳୀକରଣ ହେଉଛି ବା ସରଳୀକୃତ ହେଉଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଆମ ଶରୀରରେ କାମରେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି
सेटा कौन जाइए डायरेक्ट ब्लड मिस जाऊँ कि ना फास्ट जाइए हजम हो विभिन्न प्रकार प्रोसेस गला जाइए तार किसी सारांश जाइए आम ब्लड मिसुची आम कम आसुची। तो खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए जीव शरीर मध्य सरल उपादान परिणत हो सब अंग प्रत्यंग उपलब्ध हुए। सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित होता है। आम जो खाद्य खाइले से खाद्य सारांश जाइए शरीर मिसला आम कोष निकट गला आम सेल निकट गला सेठी जाइए खाद्यर दहन हम बा जारण हम से आम कह ऑक्सीडेशन। खाद्य ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन है बाहर कौन एनर्जी। आ गोटे कथा मुझे कहना चाहे जितेबाला खाद्यर सारांश जाइए सेल पाखे पहुँचे तो सेल पाखे पहुँचला पर सेठी आमे जो खाद्यर सारांश नहीं पहुँचला पर सेठी से जिनसर दहन हम बा जारण हम बा ऑक्सीडेशन हम है पर सेठी एनर्जी बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एवं वाटर बाहर पर यही कार्बन डाइऑक्साइड जोटी बाहरला सेटा आम ब्लड देकी आसीबो हार्ट को हार्ट रो जीव फुसफुस को एवं फुसफुस रु ताहा रेस्पिरेशन बा श्वासक्रिया साहाय्य बाहर को पलाइब। तापर देखिए शक्तिमोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया एक डेस्ट्रक्टिव प्रोसेस कह जाए कारण ए खाद्यर दहन होची डेस्ट्रक्टिव बा ध्वंसात्मक प्रक्रिया कह जाए ध्वंस होची। यह अपचय बा काटाबोलिज्म गोटे एग्जांपल काटाबोलिज्म अपचय घटुची खाद्यर से काटाबोलिज्म बा अपचय यह कह जाए। सेहीपरि खाद्यरू शरीर गठन पाई आवश्यक उपादान सृष्टि होगा गठनमूलक बा कंस्ट्रक्टिव एटा आम देखिले अपचय होची डेस्ट्रक्टिव मेथड। सेहीपरि शरीर गठन पाई खाद्य तैयारी हेबा उपादान सृष्टि हेबा कह जाए कंस्ट्रक्टिव बा गठनमूलक। यहाँ एनाबोलिज्म एग्जांपल 10th पिला माने जो माने आगो को +2 रे साइंस रखी बोली भाबुचंती तो सेमानंको पई ए इंग्लिश टर्म गुडा का आक्वेंट हबा निहाती आवश्यक कारण +2 रे इंग्लिश टर्म रे पढ़िया पड़िबो सेति पई ओडिया सहित इंग्लिश टर्म को भी मन रखिया चेष्टा करंतु। तो या चय बा कानाबोलिज्म एनाबोलिज्म कहा जाए। तो मनुष्य शरीर भितर ए जो काटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म सेटा सब बेले चालू रही थाए मिसिकी चले काटाबोलिज्म पर एनाबोलिज्म एनाबोलिज्म पर काटाबोलिज्म सांगरे चले से काटाबोलिज्म आउ एनाबोलिज्म को कहा जाए मेटाबोलिज्म। ओडिया रे कहले चय आउ अपचय मिसिकी कहा जाए चयापचय। जमीती आम जानते बायोलोजी बायोलोजी टर्म टी आसी जूलोजी आम को सरलीकृत कर जूलोजी प्लस बटनाई बटनी प्लस जूलोजी मिसिकी बायोलोजी सेमिति आम कहीपर काटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म मिसिकी मेटाबोलिज्म बा चय प्लस अपचय मिसी चयापचय। आउ ये चयापचय प्रोसेस टी जीव शरीर भितर सब चली थाए सुतरां जीव को सक्रिय और जीवंत रखिपारे यार महत्वपूर्ण भूमिका रही। एथिपाई जानले कौन मनुष्य शरीर बचाई आमको बचाई खाद्यर आवश्यकता सबुठ अधिक खाद्य आमर सब दरकार। एवं आम देखा खाद्य कौन खाद्य केते प्रकार विभक्त कराई आम जो डाली भात मांस अंडा खाऊंच ये सब कौ कौ प्रकार खाद्यर पोषक आमको जगाई था न्यूट्रिएंट्स आमको जगाए। तो खाद्य प्रकार देखा गले देखा रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर करी आम खाऊ खाद्य को मुख्यतः 6 प्रकार विभक्त कराई। तो आम देखिले ये कौन खाद्य को मुख्यतः 6 प्रकार विभक्त कराई से गुड़िक क्या बेस कराई रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर माने केमिति तैयारी होइछि कार्य कौन आ कौ शक्ति आमको प्रदान करुछि तापर बेस करके आम खाद्य को 6 भाग विभक्त कले से गुटे कौन कौन देखिबा श्वेतसार
पुष्टिसार, जीवसार, धातुसार, जीवसार बा विटामिन, धातुसार, स्नेहसार एवं जल। कार्बोहाइड्रेट मुझे सबुथ इंग्लिश टर्म कौच जोड़ा निहाती इंपोर्टेंट, तो मन रखिए चेष्टा करंतु। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट और एटा कहती लिपिड्स, वाटर। तो ये हम देखा गोटे गोटे कर पढ़ा श्वेतसार, पुष्टिसार, जीवसार, धातुसार, स्नेहसार और जलर कौन कौन भूमिका रही आमर केमती है कार्य कौन शक्ति केमती प्रदान करुच्ची देखिए। तो फास्ट आम जा श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट्स को। तो देखा आम खाऊ तो खाद्य प्रधानतः श्वेतसार से कौन थाए शर्करा बा सुगर। आम जानते बहुत सुगर खाऊँ, सुगर एवं मंडद बा स्टार्च। तो शर्करा बा सुगर थाए सुक्रोज और मंडद बा स्टार्च थाए ग्लूकोज। ग्लूकोज और सुक्रोज फॉर्मूला फॉर्मूला सेम C6H12O6। इतरे कार्बन अच्छी, हाइड्रोजन बा उद्यान अच्छी, ऑक्सीजन अच्छी। तो ये ग्लूकोज जाइए दहन हम से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वाटर बाहर आ एनर्जी बाहर। ये देखा कोशीय शोषण बा सेलुलर रेस्पिरेशन आम जो कहलु दहन बेले ग्लूकोज जारण फल अंगारकाम्ल जल सृष्टि होगा सह किछ शक्ति निर्गत होता है। तो आम जो खाद्य ग्रहण करुँच श्वासक्रिया करें ये दुईटी मिसिकी कोशीय श्वसन बा सेलुलर रेस्पिरेशन कोशीय शोषण हो जहाँफल कौन बाहर वाटर CO2 एंड एनर्जी। आउ 1 ग्राम श्वेतसार 16 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए एनर्जी बारे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो आम दिन को केते परिमाण भात खाऊँ केते परिमाण रुटी खाऊँ केते परिमाण आलू खाऊँ से केते किलो जूल शक्ति बाहर थो भाविया कथा। तो ये आम मिस कले जाना ये जो श्वेतसार युक्त खाद्य बा शर्करा बा मंडद को खाद्य थाए आउ केते परिमाण कौन दिए देखिया। तो ग्लूकोज बस फास्ट देखिए ग्लूकोज सुक्रोज विषय बेसी आम ना ग्लूकोज देखिए। फास्ट ग्लूकोज थाए मंडद थाए भात आलू गहम बाजरा गहम खाऊँ रुटी ए ग्लूकोज परिमाण होता है मंडदर परिमाण स्टार्च परिमाण अधिक थाए। देखिए सुक्रोज बा सुगार तो आम ना जापर कि सुगार बा चीनी रे निहाती सुक्रोज थी चीनी गुड़ फलरस ये सुक्रोज परिमाण अधिक थाए। तो ये आम जानले खाद्य को रासायनिक गठन कार्य और शक्ति को बेस करके 6टा भाग विभक्त कराला। तो आम श्वेतसार विषय जान श्वेतसार कौटी थाए कौन काम करे ग्लूकोज आ सुक्रोज को ये थाए खाइबार अच्छी आ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो दहन हो जारण हो 16 किलो जूल एनर्जी हमको मिलूचे। एबे आम जा स्नेहसार
बा फैट्स बा लिपिड्स ताको देखिबा केउं केउं खाद्य पदार्थ रे स्नेहसार अवेलेबल अच्छी बा स्नेहसार अच्छी आ कौन काम करे स्नेहसार आमर तो आम खाऊा खाद्य जेपरिक मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश तेल मन रखा उचित अंडार हलदिया अंश बा तार केसर आम जो कहती अंडार केसर बा यक से फैट्स थाए अंडार धला अंश से कह जाए आल्बुमिन से प्रोटीन थाए तो अंडा आम जो खाऊँ फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ फैट्स अवेलेबल तो देखिए मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश घी रे स्नेहसार चर्बी लिपिड जातीय खाद्य तो आम कौन देखिले मांस क्षीर छेना जी क्षीरजात द्रव्य सबुथिरे तेल नड़िया ए स्नेहसार अधिक परिमाण थाए कोष झिली तैयारी लिपिड प्रमुख भूमिका रही सेल वाल सेल सेल वाल नहीं कोष झिली बा सेल मेम्ब्रेन सेल वालटा थाए प्लांट सेल सेलुलोज तैयारी तो सेल मेम्ब्रेन बा कोष झिली तैयारी लिपिड भूमिका अधिक लिपिड प्रायतः कह गले शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव संचय होता है आम जानते आम फैट्स खाइले आमर मोटा हो जाती आम से कह जाए फैट्स कम खायापी फैट्स खाइले आम मोटा जाती फैट बढ़ी जाए बॉडी रे तो चर्बी बा लिपिड भाव में स्टोर होकर रुए संचित होकर रुए आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यह जारण हुए यह शरीर को शक्ति जगै थाए तो मनकर आम गोटे दिन उपवास कर तो आमको कार्य करने शक्ति कौन मिलूँ आम तो से दिन स्नेहयुक्त खाद्य खाई ना कि श्वेतयुक्त खाद्य खाई ना तो आमको खाइबा मिलूँ कौटू खाइबाटी आमको मिलूँ ये जो संचित बा स्टोर फुड जो स्नेहसार जातीय खाद्य जो स्टोर होमको से शक्ति मिलूँ आवश्यक स्थले तार जारण घटे जारण घटला द्वारा आमको शक्ति मिलता है चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है आम जानते चर्बीर आस्तरण गोटे थाए आम चर्म बा स्किन तले ताप अपरिबाही होइथिबारु चर्बी शरीर को उष्म रखा साहाय्य करे ताप अपरिबाही कारण ये ताप को बाहर को छाड़िया को दिएनी से बॉडी को सी गरम रखे से आम कहती मांस खाइला आमको गरम लगुच फैट्स आम लिपिड जो मैंने अधिक थाए अधिक गरम लगे जो अधिक मोटा होता अधिक गरम लगे आउ दिन बेसी ठंडा भी लगे ना से आउ गोटे कथा आम शरीर को ऑयल रखा भी हेल्प करे स्नेहसार बा लिपिड्स ऑयल बहुत मात्रा हेल्प करे तो ये देखिले स्नेहयुक्त खाद्य क्योंकि क्योंकि अवेलेबल अच्छी यार काम कौन या आवश्यक स्थल आमको शक्ति जगाए जो आम पाखे श्वेतयुक्त खाद्य अभाव थाए से आमको स्नेहसारयुक्त खाद्य आमको शक्ति जगाए एवं आम जा पुष्टिसार बा प्रोटीन देखिए पुष्टिसारयुक्त खाद्य क्या अवेलेबल आमको केमती मिलूँ काम कौन तार मुख्यतः माछ मांस अंडार धला अंश छेना क्षीर परी प्राणीज द्रव्य और डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आम पुष्टिसार पाई था तो मुझे कही आगुरी धला अंश आल्बुमिन थाए प्रोटीन फुल प्रोटीन थाए तब जानिले सोयाबीन प्रायतः पिला सोयाबीन खाया भल लगे सोयाबीन डाली जातीय खाद्य ये रहा छेना क्षीर माछ मांस अंडारे मुख्यतः प्रोटीन थाए प्रोटीन आम शरीर वृद्धि पाई नूतन कोष तंतु गठन प्रतिशत एकांत आवश्यक मुझे कहीदे आम शरीर गठन मूल उत्स माने मूल जो आम सेल अच्छी सेल रे डीएनए रे जो थे आम ट्रांसफर हो जेनेरेशन आई जेनेरेशन आगे चलती से प्रोटीन रे
एमिनो एसिड रे एमिनो अम्ल बा एमिनो एसिड रो श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित। तो प्रोटीन होती गोटे चेन, गोटे कड़ी, चेन चेन कड़ी जो थे कि गोटे गोटे कड़ी होची एमिनो एसिड। ए गोटे गोटे एमिनो एसिड मिसी गोटे श्रृंखला तैयारी करती, से श्रृंखला को कहा जाए प्रोटीन। जिते बड़े आम प्रोटीन युक्त खाद्य खाऊँ सारा शरीर भितर जाकि डिविजन हम है गोटे गोटे एमिनो एसिड जाकि आम शरीर काम लगे। डायरेक्ट प्रोटीन गोटे चेन जाकि किसी काम लगे ना, गोटे गोटे डिवाइड हम, डिवाइड होगा गोटे गोटे एमिनो एसिड हम है एमिनो एसिड गुड़ा जाकि आमर विभिन्न कोष निकट में पहुँचे। तो आम जानले प्रोटीन कौटी एवेलेबल आम मैंने प्रोटीन निहाती दरकार। तो प्रोटीन युक्त खाद्य खाइबा निहाती आवश्यक। निजर डाएट मेंटेन करूँ, प्रोटीन युक्त खाद्य खातु, अधिक स्नेह युक्त खाद्य न खाई प्रोटीन युक्त खाद्य खाइबा निहाती आवश्यक। एबे आम जीवा धातु सार बा मिनरल्स पाखक। देखिए धातु सार खाद्य आमको कौट मिलूँ और कम कौन शरीर पाई विभिन्न धरण धातु सार यथा लोह, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटासियम आदि आवश्यक। धातु सार माने मिनरल्स, आम जानते मिनरल्स क्या कहे साधारणतः आम जानते माइन्स फाइन्स धातु बा आयरन, कैल्शियम गुड़ा सब धातु। तो यही धातु निहाती आम बॉडी भीतर भी जाऊँगी, जहाँ आम देखुं गोटे लुहा रड आयरन ने तैयारी लोह से बॉडी की जाऊँगी केमी खाଇବା अनुसार। तो आम भी जमी गोटे घर तैयार बेले लुहा छड़ निहाती आवश्यक, रड निहाती आवश्यक। आम बॉडी गठन सेपरी लोह बा लुहा रड निहाती आवश्यक। सेटा कौट मिल आमको मिनरल्स मिल कौन कौन मिनरल्स दरकार लोह, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटासियम सब किसी मिनरल्स जहाँ आम बाहर देखते सब गुड़ा आम बॉडी गठन निहाती दरकार। शरीर दांत हाड़ गठन कैल्शियम और लोहित रक्त कणिका थी हिमोग्लोबिन गठन पर लोह आवश्यक। आम जानते आम ब्लड बा आम रक्त रे आरबीसी अच्छी, आरबीसी टा हिम आरबीसी रे हिमोग्लोबिन अच्छी आ हिमोग्लोबिन हिम बा लोह बा आयरन निहाती बहुत मात्रा आवश्यकता। आम शरीर दांत हाड़ गठन कैल्शियम बहुत मात्रा दरकार। पेस्ट कैल्शियम एवेलेबल थाए। आम कैल्शियम टैबलेट भी खाती, जो मन बोन कमजोर हो जाए से मैंने कैल्शियम खाती। वुमेन सॉलिड्स रे कैल्शियम मात्रा अधिक थाए रखा जाए कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पर एज पर बॉडी रे कैल्शियम मात्रा कमी जाए। कैल्शियम मात्रा को मेंटेन करने बैलेंस करने आमको बाहर कैल्शियम जगह पड़े, बाहर आयरन जगह पड़े बॉडी भीतर को। यह छड़ा शरीर आयन संतुलन रक्षा कर धातु सार प्रमुख भूमिका रही। आयनिक बैलेंस बॉडी मेंटेन करने आमको मिनरल्स आवश्यकता निहाती और बहुत मात्रा दरकार। एबे जीवा विटामिन्स। एवं देखिए विटामिन्स कोड एवेलेबल आमर कौन काम लगुच। कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। तो आम जानते आम बॉडी किसी बहुत किसी प्रक्रिया प्रोसेस होची जो एंजाइम मात्रा निहाती आवश्यक। एमती कि सबुज उद्भिद भी मात्रा एंजाइम आवश्यक सबुथिरे। तो कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य करता है। विटामिन उपस्थिति रे से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूप संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग देखा थाए, जमीक कि रोग आम जानते विटामिन आम कहीं दरकार विभिन्न प्रकार रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई आमको विटामिन दरकार। जल द्रवणीय विटामिन शाग, पनीपरिया और फल आदि मिलता है। तो विटामिन्स गुड़ा आमको जल मिसी जाए विटामिन से आम कौट पाइबा डायरेक्ट जल तो पाइपर ना, से शाग, पनीपरिया और फल एम जल द्रवणीय विटामिन मिल पाइबा आमको। चर्बी और तेल रे द्रवणीय विटामिन प्राणी चर्बी बा उद्भिद तेल मिलता है। चर्बी बा तेल रे द्रवणीय विटामिन जोड़ा चर्बी रे तेल रे जो विटामिन गुड़ा
द्रवणीय मिले जाए सेगुड़ा आमको मिले प्राणीज चर्बी और उद्भिदजात तेलरू किछि विटामिन्स अच्छी जो विटामिन गुड़ा पानी रे मिसीज आ किछि विटामिन अच्छी जो गुड़ा चर्बी रे बा लिपिड रे मिसीज तो जो विटामिन गुड़ा पानी रे मिसी जाए से विटामिन गुड़ा आमको मिले शाग पनीपरिया और फलरू आ जो विटामिन गुड़ा चर्बी बा तेल रे मिसी जाए सेगुड़ा आमको मिले प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेलरू तो वाटर डिजॉल्विंग विटामिन्स आर अवेलेबल इन शाग पनीपरिया फल एंड जो गुड़ा है चर्बी बा तेल मिल जाए सेगुड़ा आमको उद्भिदजात तेलरू बा प्राणी चर्बी मिलता है देन आम तापर जा जल गोटा एसेंशियल मनीष बचाई जल निहाती आवश्यक जल को जीवन भी कहुए आम जान रखा उचित जे मनीष शरीर में कोष 70 to 90% जल थाए मनीष शरीर कोष 70 to 90% जल थाए साइटोप्लाज्म रे बा कोष रस 70 to 90% जल थाए कोष थिबा कोष रस बा कोष जीवक साइटोप्लाज्म प्राय 70-90 भाग जल कोषर स्थिति और एथिरे होउथबा विभिन्न प्रकार प्रक्रिया पई जल अत्यंत आवश्यक झाड़ परिस्रा और निश्वास रे शरीर जल क्षय होता है आम जानते आ भरणा करने आमको दिन को 3 ରୁ 4 लीटर पानी भी उचित निहाती आमको दिन को 3-4 लीटर पानी भी आवश्यक शरीर जलीय अंश कमी गले शरीर अवश हो जाए विभिन्न अस्त देखा जाए यदि जलीय अंश शरीर कमिज देन आमको भल लगनी आला मांदाड़िया मांदाड़िया लगे से विभिन्न प्रकार रोग भी देखा जापे से आमको जलर परिमाण बालांस रखा निहाती आवश्यक मनुष्य भितर से आमको दिन को 3 ରୁ 4 लीटर पानी पीवा निहाती आवश्यक तो आशा करुँची आज आम एत जाए पढ़ा देन तापर प्रश्न प्रकार आम आ गोटे भिडियो देखा तो आशा करछी आपन भिडियो भल लगी यदि आपन भिडियो भल लगुच अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ मु सुभद्रा आपन देखा अन्य एक भिडियो प्रश्न प्रकार